سے دیکھ لیتے, سوچ لیتے, سمجھ لیتے, نہیں سمجھ میں آتا تو آ جاتے مدرسہ رشیدیہ کے اندر, اس ادارے میں جہاں مکتب کی تعلیم ہوتی ہے, قرآن کی حفظ و ناظرہ کی تعلیم ہوتی. یہاں پر پڑھانے والے ہمارے محترم صاحب بھی تمہیں آسان سے بتا دیتے کہ وسیم رضوی تمہارا غلط عقیدہ اور تمہاری غلط سوچ ہے, اس لیے کہ اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. جو مانسک اعتبار سے بیمار ہوتا ہے اس کی برائی ہوتی ہے, اس کی فضیلت نہیں بیان کی جاتی. آپ کہیں گے کہ مولانا عبداللہ یہ تو آپ قرآن پڑھ رہے ہو, تو قرآن میں فضیلت ہے تو آپ کی کتاب اٹھاؤ, آپ کی کتاب میں فضیلت ہے, آپ کی کتاب میں فضیلت ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مذکورہ, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, I am the last prophet, there will be no prophet after me. اٹھاؤ بائبل انسائکلوپیڈیا, بائبل سے نکال کر جو انسائکلوپیڈیا امریکہ والوں نے بنایا, جو برٹش والوں نے بنایا, اس کے اندر محمد رسول اللہ کی احادیث موجود ہے. کیا حدیث؟ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کا پڑوسی بھوکا ہو تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. A person will not enter the paradise, will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties. بھوکا ہو, اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا. لا يدخل الجنت قطاع. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا, انسائکلوپیڈیا آف بھارت, انسائکلوپیڈیا آف برٹش, انسائکلوپیڈیا آف جرمنی, اٹھاؤ اس کے اندر a person who talks about other ill he will not enter the paradise. لا يدخل الجنت قطاع. جو چغل خوری کرے گا وہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا. یہ کن کے الفاظ ہیں؟ انہی کے الفاظ ہیں جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد مانسک اعتبار سے بیمار تھے. ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کو بائبل کا انسائکلوپیڈیا کا حوالہ دے رہا ہوں. اور اوتھینٹک بک میں, ریلیجیس بک میں جب مسئلہ کہیں پر اٹکتا ہے تو پھر انسائکلوپیڈیا کا حوالہ دیا جاتا. تو انسائکلوپیڈیا کے اندر دنیا کی تمام تواریخ اور دنیا کے تمام ہسٹری, اتہاس, کانسیپٹ, عقائد, ریلیجن, دھرم, مذاہب, یہ سارے کمیونٹیز, فرقے باطلہ, فرقے ضالہ, فرقے صحیحہ, سارے فرقوں کا تذکرہ آپ کو وہاں پر ملے گا. تو اس لیے میں نے ان کا حوالہ دیا تاکہ اس کو ہوا بھی نہ لگے. اس نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ بھئی انسائکلوپیڈیا آف برٹش کتنے جلدوں میں ہے, انسائکلوپیڈیا آف بھارت کب لانچ ہوا ہے, اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, اور بھی انہوں نے اعتراضات کیے, بلکہ کیا کہیے گا, ایک ٹی وی کا وہ نیوز اینکر کچھ ملتا نہیں, حضرت مولانا کے پاس پہنچ گئے, مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے پاس, ہمارے استاد محترم ترمذی شریف جلد ثانی ہم نے ان سے پڑھی, ان کے پاس پہنچ گئے. حضرت نے تو بہت اچھے جوابات دیے. ان کا ایک سوال یہ بھی تھا, ان کا سوال یہ تھا کہ اچھا مولانا اللہ میں ایشور میں کیا فرق ہے. میں ایک نئی تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اللہ میں ایشور میں کیا فرق ہے. مولانا نے کہا کہ اللہ میں ایشور میں کوئی فرق نہیں. دیکھیے کیا اللہ میں ایشور میں کوئی فرق نہیں, لیکن وہ الجھانے کی کیا کوشش کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں, اللہ ایک ہی راستے سے آتا ہے آپ کا, اور ہمارا ایشور ہر راستے سے آتا ہے. کتنا غلط کانسیپٹ ہے. کہاں پڑھا اس نے کہ اللہ ایک ہی راستے سے آتا ہے, کشن گنج والے راستے سے آتا ہے, وہ ادھر کلکتہ والے راستے سے نہیں آتا, یا ادھر دارجلنگ والے راستے سے نہیں آتا. اللہ تو ہر طرف سے آتا ہے. واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ایشور بھی ہر طرف سے آتا ہے, اور ایشور ہے ایک. سدرشن نیوز کے اینکر صاحب پڑھیے آپ اپنے گرو جی کی کتاب ستیارتھ پرکاش, پہلی لائن کے ایک منتر میں نے پڑھا ہے, اوم شنو ورونا, اوم شنو مترا, اوم شنو ورونا, شنو بھوت وریما, اوم شنو ورونا, اوم شنو مترا, شم بھوت وریما. ورون, مترا, بھوت وریما, ایک ہی ایشور کا نام. آگے کیا کہا, شنا برہما
ब्रह्मा भी शन्ना है, शन्ना भी ब्रह्मा है, शन्ना बृहस्पति और यही ईश्वर बृहस्पति भी है। इसीलिए इन तमाम के लिए कहा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, इन्हीं के सामने सजदा करो। कौन? पंडित दयानंद सरस्वती की किताब उठाओ, वसीम रिजवी अपने इन दादाओं की किताब उठाओ। 1857 के वक्त में मौलाना कासिम नानोतवी ने दौड़ा कर मुनाजरा किया था इसी पंडित दयानंद सरस्वती से। हरिद्वार से भागकर मेरठ आया, मौलाना मेरठ पहुंचे, मेरठ से दिल्ली आया, पता नहीं कौन से कमरे में बंद हुआ तो आज तक पंडित दयानंद सरस्वती नजर नहीं आया। उन्होंने किताब लिखी इस्लाम के खिलाफ, लेकिन वो भूल गया कि हम इस्लाम के खिलाफ तो लिख रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान से, उनके कलम से अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की तस्दीक की। इन मंत्रों को पढ़िए और कुरान करीम की आयत पढ़िए तो ऐसा लगता है कि कुरान करीम की आयतों की तफासीर की रोशनी में उन्होंने इस मंत्र को लिखा और कहा ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मन को नमो करो, नमस्ते वायो, चाहे नमस्ते करो वायु को, वायु देवता, अग्नि देवता, किसी भी देवता को करो, इसलिए कि सारे देवता नाम अलग अलग है लेकिन देवता एक ही है, वो जात एक ही है। कौन लिखता है? पंडित दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, जिनकी पूरी किताब इस्लाम के मुखालफत में। उस किताब का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। वो किताब मैंने हासिल की है राजस्थान के कोटा से, मिलती नहीं जल्दी, तो हमने वहां से किताब ली। जब हमने देखा कि इसमें क्या क्या एतराज़ात, हमने देखा अरे पहला मंत्र जब आप पढ़ेंगे तो वाक़ईतन आप कहेंगे कि अल्लाह ने एक जालिम के, अल्लाह ने एक मलऊन के जुबान से अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम की सदाकत को बयान किया। यहाँ तक कि आगे उसने क्या लिखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस तक लिखी उन्होंने। क्या लिखा उन्होंने ये लिखा मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः। कितनी अच्छी प्यारी बात उन्होंने कही है। उन्होंने सोचा कि हम इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम में जो बातें हैं वही बात उनसे लिखवा दी। मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः। हमारी माँ बहनों, ये मंत्र आपके लिए। समाज में हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे जो नौजवान होते हैं, इनकी भविष्य, इनकी फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल माँ के हाथ में, बाप के हाथ में और चित्रवान टीचर के हाथ में। किसी भी बच्चे की मुस्तकबिल जिंदगी के लिए 3 लोग अहम होते हैं। सबसे पहले माँ, दूसरे नंबर पर बाप, तीसरे नंबर पर टीचर। उन्होंने ये बयान किया मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा। जब ये तीनों आदमी की सही तरबियत होगी तो वो पुरुष वैदा बनेगा, यानी वो पुरुष बनेगा, जानकार बनेगा। वैद मीन्स जानकार, जानने वाला, गुण वाला। ये बात कही उन्होंने हदीस की रोशनी में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम लोगों को अकीदे सिखलाते थे। मेरी माँ और मेरी बहनों और मेरे पूर्वज, मेरे साबिक नौजवानों, मेरे गयूर मुसलमानों, आज हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन? हमारी माएँ। आज आपका बच्चा शराब पीता है, उसका जिम्मेदार कौन? समाज का बाप। आपका बच्चा अगर आप चर्च पीता है, अगर आपका बच्चा जुआ खेलता है, उसका जिम्मेदार कौन? हम माँ और बाप होते हैं। हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। आपका बच्चा है, आप जानते हैं कि आपका बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन आप उसको अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत के शफकत में छोड़ देते नहीं, बल्कि ताकीद कीजिए। अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो आप उसको ताकीद कीजिए। 7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में नमाज की ताकीद कीजिए और उसके बिस्तर भी अलग कर दीजिए। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अपने अहल अयाल को नमाज का ऑर्डर करो। आज हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ, नौजवान की जवानी की तो बात ही मत करो। मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, आपके कोख से
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा होता? आपके कोख से तारिक बिन ज़ियाद क्यों नहीं पैदा होता? आपके कोख से मौलाना कासिम नानोतवी क्यों नहीं पैदा होते? आपके कोख से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी क्यों नहीं पैदा होते? आपके कोख से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी क्यों नहीं पैदा होते? क्योंकि हमने अपने बच्चों की तरबियत करना छोड़ दिया। हम अपने हाथों से, अपने पॉकेट से पैसे देकर अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते। वो बच्चा मोबाइलों में क्या करता है? फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है। कभी भी वो अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल के जरिए से कुरान सीखने की कोशिश नहीं करता। कभी भी किसी मदरसे में जाकर किसी उस्ताद के सामने, इमाम साहब के सामने बैठकर वो कुरान करीम सीखने की बात नहीं करता। जवानों, क्या करोगे इस जवानी को लेकर? आप जिस मुल्क में बसे हैं, इस मुल्क में आप आजाद हैं। आप आजादी के साथ साथ एक संविधान है इस मुल्क में। आपके इस संविधान के रहते हुए आपकी बहनों की इज्जतें लूटी जाती है। आपके त्रिपुरा के अंदर तकरीबन 12 मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है। आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। आपके रहते हुए आपके मस्जिदें तोड़ी जाती है। आपके कुरान पर पाबंदी रखते हैं। आप उठो मैदान में, तालीम के मैदान में, और आप लॉयर बनो, आप जस्टिस बनो, आप जस्टिस ऑफ इस्लाम और जस्टिस ऑफ भारत बनो। भारत के संविधान को पढ़कर बताओ कि मौलाना करीम साहब के हाथ में हथकड़ी क्यों लगाए तुमने? मौलाना करीम साहब का क्या गुनाह था? जबकि भारत का संविधान दफा नंबर 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। क्या मतलब है प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन का? क्या मतलब है? अपने मजहब की अच्छाई को लोगों के सामने पेश करना, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 कहता। हमारा बच्चा नहीं जानता, हमारा बच्चा नहीं जानता। अगर आपके बेटे की कोई हत्या कर दे तो पुलिस वाला कौन सा धारा लगाएगा? यू डोंट नो, आप नहीं जानते। क्यों? हमने इतनी तालीम नहीं दी। आपके बेटी की अगर कोई इज्जत को लूटे, रेप करे तो कौन सा धारा लगेगा? आप नहीं जानते। आपको मारकर, अगर आपको मारकर या आपके बच्चे को पकड़कर किडनैप कर ले आपके बच्चे का, तो कौन सा धारा लगेगा? यू डोंट नो, नहीं जानते। मर्डर करने पर 302 का धारा लगता है। अटेम्प्ट टू मर्डर के ऊपर 307 का धारा लगता है। बच्ची के रेप करने पर 376, सामूहिक बलात्कार हो तो 376 डी लगता है। अगर मारने के बाद आपकी सबूत मिटाने की कोशिश की जाए तो कौन सा धारा लगता है? हमारे नौजवानों को, मुसलमानों को नहीं मालूम, लेकिन अभी उनको दे दीजिए फेसबुक, अभी देखिए, अभी बिठा दीजिए मोबाइल लेकर। अभी गए उत्तर प्रदेश में एक जगह प्रोग्राम में, तो वहाँ कहा कि मौलाना यहाँ 10 लड़के बैठ जाते हैं मोबाइल लेके और वो पेटीएम खेलते हैं। हमने कहा कि भाई पबजी गेम खेलते हुए सुना है हमने और फ्री फायर गेम खेलते हुए सुना है, लेकिन ये पेटीएम कैसे खेलते? उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे 10 नौजवान बैठ जाएंगे, 10 रुपए स्कैन करते हैं, वो उसको ट्रांसफर करेगा, वो उसको ट्रांसफर करेगा, वो उसको ट्रांसफर करेगा, और जब 10 ट्रांसफर हो जाएंगे तो उनको 40 रुपए कैशबैक मिलता। हमने कहा टाइम कितना इसमें वेस्ट होता? बोला तकरीबन 1 घंटे लग जाते हैं उन लोगों को ये करते करते, क्योंकि 10 आदमी है तो 10 को प्लस 10 कीजिए, 100 आदमी को करना पड़ा, तब जाकर 40 रुपए मिले। हमने कहा कि इतनी मेहनत अगर आप पढ़ने में लगा लो तो आप आगे चलकर लॉयर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, स्कॉलर बनोगे, आलिम बनोगे, मुफ्ती बनोगे, काजी बनोगे, तो अल्लाह आपकी दौलत में आप